नमस्कार सूर्यांश. Suryansh, can you hear me? क्या हो रहा है? नमस्कार मैम. तो पेरेंट्स में लोग बता रहे बताइए. आप ही बोलिए. आपका तो लाइन्स एंड एंगल्स था ना. नंबर प्लेट मैंने सुनिधि के लिए लगाया था. अच्छा. लाइन्स एंड एंगल्स. फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 I think no? Question number 6. Ma'am, he is bringing his textbook. Pardon? He is bringing his textbook. Okay. Yes, ma'am. So lines and angles, exercise 2.1, question number 6. Yes, ma'am. Okay. So we are given a diagram like this. This is A, B, C, D, E, F, and this is G and H. Okay. Now we are doing question number 6. Yes, ma'am. Name the following. Part A. All planes. Okay. So what are the planes? A, B, C, D. A, B, C, D. Yes. A, B, C, D. A, B, C, D. This is the first plane. Second plane, A, B, Yes. A, B, F, E. Okay, you tell me. Third. A, Uh, F, E. A, B, F, F. E. We have 6 planes in this diagram, no? So first is A, B, C, D. Then A, B, F, E. A, B, F, E. E, F, G, H. E, F, G, H. Yes, correct. Then C, D, G, H. C, D, G, H. Yes, correct. Then C, B, G, F. Good. And last one is A, D, H, E. Yes, ma'am. Now next is part B. All points. Where is it? Now tell me. A, B, C, D, E, F, G, H. All points you have to tell. Now next is two pairs of parallel lines. Two pairs of parallel lines. Now tell me.
AB and CD. AB and CD. हाँ AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. Yes, correct. मैम वो लाइन वाला सिंबल लगा, Hmm? वो लाइन वाला सिंबल लेटर्स के ऊपर। ये है ना, ये AB is parallel to CD. हाँ, ये लाइन सेगमेंट है तो we can write like this also. हम्म। But पहले sign we have to make, yeah, like this. यस। ये हाँ, ऐसे ऐसे. That it means that AB is parallel to CD. Now next pair, this is one pair, no? We have to write two pairs. So this is the one pair. Now the second pair is EFGH और ABEF। EF is parallel to GH। GS. Yes, GH. Correct. Now next, two pairs of perpendicular lines. Two pairs of perpendicular lines. Perpendicular. So perpendicular means lines at 90 degree. No? If we take AE, तो AE के perpendicular में क्या है 90 degree पे? EF है कि नहीं? AE is perpendicular to EF. AE is perpendicular. AE is perpendicular to EF. यस। हाँ DA is perpendicular to AB। D D DA नहीं, DA is diagonal. It is a diagonal ना. मैम D जो आपने बी के एकदम सामने लगाया वो सी है। sorry, हाँ, ये C. This is C. Sorry, ये रब हो गया था ना. DA is perpendicular to AB। AB. Yes, correct. So next pair is AD is perpendicular to AB. So this is question number 6. Now, types of angles. Types of angles. Okay. The first type is right angle. Right angle. So right angle means 90 degree। and it is like this. This is 90 degree. Yes। So A, B, and C. So angle A, B, C is 90 degree and right angle. Now next second type is straight angle. And it is how much degree? 80 degree। How much? 180 degree। 180, yes. Now Straight। the third is, so directly we will write third angle, acute angle. Yes। Acute angle. So what is acute angle? The angle which Less is than 90 degree। less than 90.
लेस देन 90 डिग्री ना, सो इट इज लेस देन 90 डिग्री ना, 90 डिग्री तो यहाँ तक जाएगा, पर उससे जो है ये लेस है, so this is less than 90, so it is called acute angle. Now the third is obtuse angle, sorry, fourth is obtuse angle. So obtuse angle is what? More than 90 degrees. More than 90, yes. So it is like this. Now complete angle. Fifth, complete. Complete angle is 360. 360 degree, and it is shown like this, straight line. So from O to A, and यहाँ से स्टार्ट होके, इधर से स्टार्ट होके, एंड वापस आर्म जो है यहाँ से स्टार्ट होके पूरा एक राउंड लेकर के यहाँ पे वापस ओ ए पे आ जाएगा. Yes, ma'am. नाउ reflex angle. Seventh is reflex. Reflex angle. The angle which is more than 180 degree but less than 360 degree. 60, yes. So it is like this. यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से ऐसे जाएगा. So it is greater than 180 and less than 360. So these are the types of angles. Now exercise 2.2. 2.2. Name the points that are. Question number 1. Name the points that are we are given the figure like this. O D B E point A. This is C and this is F. So we are given this picture, and from this we have to find in name the points that are in the interior Yes. interior of angle DOF. Angle DOF. So where is angle DOF? DOF. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर DOF ये जा रहा है. अब इसके इंटीरियर में हमें सारे पॉइंट्स लिखने हैं. ठीक है, DOF के. तो इसके इंटीरियर में मतलब इसके भीतर कौन कौन से पॉइंट्स है? पॉइंट ए है, आप बताओ कौन कौन से पॉइंट्स है? B E. बी एंड देन ई ना, ए बी एंड देन ई, यही है ना, ये तीनों पॉइंट्स है. Yes. Now next is exterior of part B. Exterior of DOE, of angle DOE. So angle DOE is what? DOE ये है, और इसके एक्सटीरियर में आपको पॉइंट्स बताने हैं. सो कैन यू टेल मी? F F F T.
F and C. C. Yes, correct. Now next. On. Part C. On. Angle FOE. FOE. Yeah. On this angle, you have to tell the points. FOE. F O O, B, and B B. B and FOBE. F O B And E. Hmm. Yes, correct. Now question number 2. For this we need protractor. Now question number 2. Which angle is greater? Can I get my protractor? Hmm? Can I Which get angle is greater? Part A. A, B, and C. And second angle is, so you have to measure it by Yeah. protractor. So it is not possible to draw it on the board. ठीक है, तो इसको आपने मेजर करके एंड देन यू हैव टू टेल कि विच वन इज ग्रेटर. तो ये वाला थोड़ा सा पार्ट इज कंफ्यूजन. Part B and C, they are part B. Part B, in part B, you are given a clear cut difference B, C, and A. An angle. इसमें आप क्लियर ऐसे ही देख के बता सकते हो कि कौन सा ग्रेटर है. Yes, ma'am. बताओ. Now tell me. Ma'am, ABC greater. ABC is, this is 90 degree and this is less than 90 degree. Acute. So angle ABC is greater than angle XYZ. XYZ. Okay. तो सुनिधि, अभी आपका स्टार्ट मैं करूंगी, ठीक है? So don't leave the class. Now next is and similarly part C is also like this. This is you have A, B, and C, and this is straight line. So which one is greater? XYZ. Hmm? Straight line. Straight line. This is greater. Now question number 3. Question number 3. Classify angles as acute, obtuse, right, straight or reflex angles. ठीक है? तो आपने क्लासिफाई करना है. मैं डायरेक्ट लिख दे दूं. Part A we are given like this. So now tell me. Reflex. Reflex, yes. Now part B. This is, ये तो straight line है ना? Yes, ma'am. Only with part C. Right. Part C we are given right angle.
like this. Yes. This is right angle. Now part D. Part D we are given like this. अभी ये बताओ, ये थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा है. Now tell me. Acute. Yes, good. जो वो लाइन जो वो आर्क दिखाता है वही हो. Part E. We are given like this. नहीं, और भी स्ट्रेट है ये थोड़ा सा ऐसे करके and then ऐसे. M. Now this is Obtuse. obtuse. Little less than 180. Hmm. So question number 4 में you are given like this. Question number 4 में ऐसे दिया है ना, कुछ ऐसे लाइन दी है ऐसे. This is 1 and this is 3. This is 2 and this is 4. So 5, 7, 8 and 6. So measure all the angles and classify as acute or an obtuse. तो आपने acute और तो this इनको मेजर करना होगा एक्चुअली ना, इसको प्रोटेक्टर से या कंपास से. तो वन वन इट सीम्स दैट कि 1 जो है ये एक्यूट लग रहा है ना, तो अगर 1 एक्यूट है तो 3 भी एक्यूट होगा. तो आप टेबल ऐसे बना लो ना, एक्यूट और ऑब्ट्यूस. एक्यूट में क्या आएगा, 1 and 3 आएगा आई थिंक ना. आप मेजर कर लेना एक बार. 1, 3 एंड इस वाले में 1 and 3 आएगा. हाँ. एंड And इसमें ड्रॉ करने में हो सकता है शायद जो है 5 या 7 दिख रहा है. मैम 5 है. 5, हाँ, 5 and 7. 7 भी है. एंड अदर्स आर ऑब्ट्यूस ऑब्वियसली. तो बाकी जो बच गए वो क्या हो गए, वो ऑब्ट्यूस हो गए. तो 1 and 3 अगर एक्यूट है तो 2 और 4 क्या हो जाएंगे, वो ऑब्ट्यूस हो जाएंगे. 4 एंड 8, 6. 8 एंड 6. ठीक है. Yes. ओके. तो दीज आर द नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है, ये बात पे जो है ना. क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही है. नेम एक्यूट ऑब्ट्यूस राइट एंड स्ट्रेट एंगल्स ना. 70 पार्ट ए 72 है, 72 डिग्री है कि नहीं. तो यू कैन इजिली राइट 72 इज लेस देन 90, तो इट इज एक्यूट हो गया. 100 is obtuse. ऑब्ट्यूस हो गया. फिर 90 तो राइट एंगल हो गया. एंड 191 Reflex. हाँ, रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स. एंड 35 Acute. acute. And similarly you can do na, these are very easy. Yes, ma'am. Yes. Let's start with the Sunidhi's chapter. तो सुनिधि आपका प्ले नंबर था ना, नंबर प्ले, नंबर प्ले. सुनिधि कैन यू हियर मी, आपको आवाज मेरी सुनाई दे रही है सुनिधि. हाँ दीदी. हाँ, नंबर प्ले. हाँ, इसको जो है आपका टेस्ट कब है, यूनिट टेस्ट, मैथ्स का यूनिट टेस्ट कब है सुनिधि. दीदी अभी कंफर्म नहीं है. कंफर्म जुलाई में होगा. हाँ दीदी अभी कंफर्म होगा, अभी हुआ नहीं है. अभी आपके टेस्ट स्टार्ट ही हुए हैं. नहीं दीदी. अच्छा, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ. ठीक है, कोई बात नहीं.
तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे थे ना, एक्सरसाइज 2B। नंबर प्लेट में एक्सरसाइज 2B। तो अभी सारी नहीं करेंगे, बीच में से एक एक करें। क्वेश्चन नंबर 4, find the sum of digits, find sum of digits of all 4 digits of all 4 digit numbers whose digits digits are 4 consecutive numbers. Write the pattern also. Write pattern. Okay. So we have to find the digits of 4 digit number. We have to find the sum of digits of all 4 digit numbers. So 4 digit numbers अगर हम लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है सुनिधि, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं हम, इंक्रीजिंग कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो है हमें लेनी है। 1 अगर लिया तो 1 के बाद 2 3 4 ऐसे लेना है। 1 2 3 4 और 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में इफ वी स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 के बाद 2 3 4, ठीक है। और कितने नंबर कैसा लेना है, 4 डिजिट नंबर लेना है। तो 1 2 3 4 हो गए 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अब इनका सम लेना है, सम ऑफ डिजिट्स लेना है, तो इनका सम लेना है। तो 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। अब इनका सम क्या आएगा, 10 आएगा। 1 + 2 + 3 + 4 will be how much, 10। सुनिधि, इसका आंसर है इसके बाद नहीं, फर्स्ट नंबर हमने 1 से स्टार्ट किया है, तो कॉन्सिक्यूटिव लेने, मतलब कि एक के बाद एक लेने ना। तो 1 के बाद हमें 2 लेना ही होगा, 3 लेना ही होगा, 4। और अगर नेक्स्ट नंबर हम 2 से स्टार्ट करते हैं, अगर 2 से, इसके बाद अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 के बाद कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे, 3 4 5 हो जाएंगे। सुनिधि, हाँ दी 2 3 4 5। So now write the sum of 2 3 4 5, 2 + 3 + 4 + 5 will give you। दी इसका 11 है, पहले वाले का 10 है। हाँ, पहले वाले का 10 है, सेकंड वाले का 14 है ना, देखो चेक करो। एंड थर्ड का, अभी फर्स्ट नंबर हमने 1 से स्टार्ट किया, तो 1 2 3 4 हो गया। फिर सेकंड नंबर हमने क्या किया कि फिर 2 से स्टार्ट किया, तो 2 से जब स्टार्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 4 5। नाउ थर्ड नंबर वी विल स्टार्ट फ्रॉम 3, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा नंबर 3 4 5 6, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हमें लेने हैं ना, तो ठीक है। तो दिस विल बिकम 3 + 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू हाउ मच, कितना हो गया, इनको ऐड करो। दिस विल गिव यू दी 18 30 18 18। 3 + 4 दी will become 7 12 दी 12 4। अब नेक्स्ट नंबर हम किससे स्टार्ट करेंगे, 4 से, ठीक है। पहले 1 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से, ऐसे ही जो है कंटिन्यूस हम जो है करते जाएंगे। तो 4 के बाद नेक्स्ट 5 6 एंड 7, ठीक है। सो 4 + 5 + 6 + 7, is it clear? So this will हाँ be 22,
इनका सम निकालो अगर आप, तो 22। 222. हम्म, The next is 5, 6, 7, 8 is equals to 26. 26 है, यस। इसके बाद वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 8, 7, 6, ये हमें 5। दिख नहीं रहा. 8 + 7, 8 + 7 + 6 + 5, so this will give you 26. नेक्स्ट इज 8 के बाद अब हमें 9 से स्टार्ट करना है, तो 9, अच्छा सॉरी, नहीं सॉरी, 1 2 3 4, 4 के बाद, सॉरी यहाँ पे ये हमने डायरेक्ट 8 लिख दिया, इसके बाद 5 आएगा ना, 4 के बाद तो 5 आएगा, सॉरी। 4 के बाद वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 5, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो इनका सम हो जाएगा 5 + 6 + 7 + 8, दिस विल गिव यू 26, दिस विल गिव यू 26। एंड 5 के बाद हमें हमें किसे 6 से स्टार्ट करना है, 6, 7, 8, 9। अभी आप देखो ये लास्ट नंबर हम 9 पे पहुंच गए ना, 6 से स्टार्ट जब हमने किया तो लास्ट नंबर 9 पे पहुंच गए, तो यहाँ पे हमें स्टॉप कर दे रहा हूँ क्योंकि 9 के बाद 10 हो जाएगा ना। अब 9 से अगर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट नंबर, तो 9 के बाद लास्ट नंबर हमारा 10 हो जाएगा, और 10 जब लिखेंगे तो क्या होगा, ये 5 डिजिट नंबर बन जाएगा ना। तो 5 डिजिट तो नंबर हमें लेके नहीं चलना है, हमें केवल 4 डिजिट ही चलना है, तो इसका मतलब हम 9 पे ही स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट नंबर जैसे ही 9 आया तो हमने स्टॉप कर दिया, और यहाँ तक फिर हमने 6 + 7 + 8 + 9 = 30, ठीक है सुनिधि। हाँ. तो 9 पे हमने यहाँ पे लास्ट नंबर जैसे ही 9 आया तो स्टॉप कर दिया। इसी तरह जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा है, इसी को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखना है, सेम चीज को। If the number has increases by 4. हम्म तो पैटर्न इज इंक्रीजेस बाय 4, यस। सो 10, 14, 18, 22, सो इस पैटर्न में 4 का इंक्रीज कर रहा है ना। नाउ वी कैन, अभी सारे क्वेश्चंस नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, ओके। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो मुझे आप मैसेज कर देना, ठीक। इफ यू राइट, इफ यू राइट क्वेश्चन नंबर 6 ना, मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 6 फ्रॉम 6 to 600, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यही है ना सुनिधि। इफ यू राइट द मल्टीपल्स ऑफ 6 फ्रॉम 6 to 600, आपको 6 से स्टार्ट करके 600 तक 6 के मल्टीपल्स लिखने, सुनिधि। हाँ दीदी. क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। मैं सारे नहीं करवा रही हूँ, जहां पे जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो पूछ लेना, मैं बीच में से ना ऐसे ही जो है लेकर के, फ्रॉम 6 to 600, हाउ मेनी टाइम्स 6 विल अपीयर, हाउ मेनी टाइम्स 6 will appear,
ये फाइंड करना है कि सिक्स से हमें नंबर से स्टार्ट करके 600 तक जाना है और सिक्स के मल्टीपल्स में। तो कैसे हम लिखेंगे, सीक्वेंस कैसे बनेगा? सिक्स के मल्टीपल्स अगर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? पहले तो सबसे पहले सिक्स हो जाएगा, सिक्स का टेबल लिखना होगा ना। जब जब भी मल्टीपल्स लिखने होते हैं तो हमें क्या होता है, उस नंबर का टेबल लिखना होता है। तो सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स हो गया, सिक्स टू जा 12, सिक्स 12 18 मम्मी पार्टी 24। लेने जाओ। हाँ पढ़े, सुनी थी। हाँ दीदी। सिक्स के मल्टीपल्स हमने लिखने हैं ना यहाँ पे। दी 600 तक तो नहीं पता, पर ये 300 तक आते हैं हमें। 300 तक के आते हैं? करवा दिया, 300 तक का करवा दिया है। दीदी नहीं, हमने खुद ही कर लिया। अच्छा, तो एपी फॉर्मूले का यूज बताया है इसमें, इस क्वेश्चन में फॉर्मूले का यूज, हाँ दीदी। अर्थमेटिक फॉर्मूले का यूज बताया। ये वाला फॉर्मूला, nth टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूले का यूज बताया है इसमें। nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन डी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का यूज बताया है इसमें, ये फॉर्मूला यूज किया है इसमें। आपके स्कूल में सुनी थी? ये ऐसा फॉर्मूला कोई यूज किया है इस सीक्वेंस को लिखने के लिए? अगर नहीं बताया तो आप बता दो ना मुझे। दी नहीं बताया। नहीं बताया, अच्छा। तो डायरेक्ट आप फिर ऐसे सिक्स से मल्टीप्लाई करते हुए लिखते जाओ ना फिर, है ना, ऐसे ही करना होगा फिर। अगर फॉर्मूले का हाँ यूज दी। आपके सिलेबस में नहीं, हाँ, क्योंकि ये काफी हाई लेवल का जो ये क्वेश्चन है। अप टू 600 इज टू मच। 600 तक कितना टाइम लगेगा लिखने में? सिक्स का टेबल आप लिखते जाओ, 24 ना, फिर 30, तो ऐसे ऐसे करके आपने लिखते जाना है। फिर इसको सिक्स से फिर मल्टीप्लाई करके आपने 180 एंड सो ऑन ना, ऐसे करके सिक्स से मल्टीप्लाई करते हुए लिखते चले जाना है। कब तक लिखना है? 600 तक। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत बड़ा। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि जो क्वेश्चन आप अलग से पूछने हैं तो आप ना मुझे मैसेज कर दो, मैं बीच बीच में से ऐसे ही आपको पढ़ा दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज थर्ड सी। थर्ड सी फिनिश हो गई है आपकी, सुनिधि? एक्सरसाइज 3C। एक्सरसाइज 3C, क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल दोज डिजिटल टाइम, राइट ऑल दोज डिजिटल टाइम इन 24 hour clock, when hour and minutes, when hour and minutes are same। ठीक है, तो हमें ये टाइम लिखने हैं डिजिटल क्लॉक के जिसमें आवर और मिनट्स दोनों सेम है। ठीक है, सुनिधि, एक्सरसाइज थर्ड सी, क्वेश्चन नंबर 1। सुनिधि, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है मेरी? सुनिधि, आपको आवाज मेरी आ रही है?
सुनिधि, कैन यू हेयर मी? क्या दीदी? डिजिटल टाइम्स हमें लिखने हैं जिसमें आर और मिनट्स दोनों सेम हो। तो फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, 00 से अगर स्टार्ट करें, 00 ना, इसमें आर और मिनट दोनों सेम है 0 ही, पर बोथ आर सेम। सुनिधि, हाँ दीदी। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, 01 एंड 01। यहाँ पे आर क्या है, 1 है, और मिनट भी 1 है, तो यहाँ पे भी दोनों सेम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 02 एंड 02, तो 2 आर एंड 2 मिनट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट सिमिलरली 3 पे आ जाओ एंड सो ऑन ना। 4, when you are taking 4 hours, then take 4 minutes. So in every case you will find hour and minute same. So similarly you can write 5 and 5, and ऐसे करते हुए आपने 5 के बाद आ गया आपका 06, 06, 07, 07, 08, 08, 09, 09, and then 10, 10. So 10, 10, both are same. So similarly you have to write up to 23. ऐसे करते हुए आपको कहाँ तक लिखने हैं, 23 तक लिखना है, ठीक है। सो 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 अप टू 23, 23 आर एंड 23 मिनट्स, यहाँ तक लिखने हैं आपने। इज इट क्लियर? यहाँ तक कर लोगे हाँ। आप अपने आप? 10 तक मैंने लिख दिया, 10 के बाद 11 12 13 14, ऐसे करते करते 23 आर एंड 23 मिनट्स। 23 के बाद आप अपने 24 पे नहीं जाना ना, क्योंकि 24 पे जाते ही क्या होगा, फिर आपको 24 मिनट्स आप नहीं लिख सकते ना, क्योंकि नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ 23 पे आकर आपको स्टॉप करते हैं। तो देर आर 24 टाइम्स इन अ डे व्हेन आर, तो कितने टाइम्स जो है आर और मिनट्स जो है सेम आ रहे हैं, 0 से स्टार्ट करके आप 23 पे आ रहे हो, तो कितने ये टोटल हो गए, 24 हो गए ना टोटल, हो गए ना कितने, ये जितने टाइम्स है कितने टोटल, 24 हुए ना, हुए कि नहीं? तो टोटल देर आर 24 टाइम्स। तो दिन में कितनी बार जो है आवर्स एंड मिनट सेम होते हैं, 24 टाइम्स। अगर यहाँ से आप काउंट करो तो क्या होगा, 23 तक, तो 24 टाइम्स डेज आवर्स एंड मिनट्स आर सेम ना। तो आंसर यू कैन राइट, आप आंसर ऐसे लिख सकते हो। तो देर आर 24 times in a day when hours and minutes match a 24-hour digital clock. डिजिटल क्लॉक, ये इतना यहाँ तक नहीं भी लिखना है तो भी जो है देर आर 24 टाइम्स इन अ डे व्हेन आवर्स एंड मिनट्स मैच, बस यहाँ तक भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हो यहाँ तक, ठीक है। 560। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका हम और भी कर सकते हैं या नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, अभी टाइम का। तो नमस्कार एवरीवन। नमस्कार मैम। नमस्कार दीदी।